this is the case of 46 years old male patient. Uh, Tell me about your complaints, problems. The patient, I am suffering from DM since 2011 and sugar was around 300. I consulted physician. He started OHA. I reduced weight and then my sugar also came down and physician reduced OHA. But during lockdown, all discipline disturbed, so my weight and sugar both increased. But I didn't consult physician, and now my HbA1c is 11. So I came for treatment. Then physician might have given me higher doses or may admit me in hospital. I don't want to do such measure. So doctor, your sugar was within normal limits. Then what happened exactly? Patient, I was dieting, so it came under control. But during lockdown, I ate all that items, that too without limits. I have sweet tooth, so sweet after every meal. Ice cream, milkshakes after dinner. I like tasty and sparkling food. My business is like I hardly can get 3 meals, generally breakfast and dinner only. I have avoided outside food. So doctor says, okay. Then patient, my life is very disciplined. I daily wake up at 5 a.m. Then I go to gym. I worked out for 1 hour. I burned 600 calories daily. I drink protein shake and brunch at 11 a.m. Then I leave for office and dinner around 7 p.m. Bed by 9 p.m. Then how your sugar level raised? Now paneer, biryani and junk food increased a lot and plus desserts. So plus stress and overthinking. Overthinking is from childhood plus emotionality. Many times snacks while watching TV. If I see food I can't control. So doctor, anything else? Patient, I don't smoke. Drinking occasionally 3 to 4 times in a year with friends and that too 180 ml only. These are my habits. I had lost 20 kgs. Even physician told me that we will stop diabetic medicine, but now everything back to square one. So doctor, tell me about overthinking and stress. Patient, I am absorbed in thoughts. I don't feel happy inside. I feel mood off, irritability if business problem occurs. Emotionality means eat something when mood is off. I feel better with it. For outsiders, everything is normal, but from inside, thinking is going on and on. So hand gesture doing rounds with hand. My car is now 12 years old, so I think I must change it. Then my mood becomes happy and keep thinking about buying new car. I made search on net. Then at times, why to put so much money in car? Car is running good. Why to change it? Sometimes energy and confidence. Hand gesture, closing fist. And then opposite. I don't go on destructive mode. I cut myself from that subject. I counter that thinking. What would happen if you don't counter? So I keep thinking about pros and cons. What is bodily sensation? As if paralyzed. I feel helpless. I want new car, but excitement when thinking, enthusiastic, passionate. When you feel energetic, how does it experience? So patient says ecstatic, happiest in the world. I am feeling loneliness. I have just shifted to new flat. By evening, I feel need for company friends. There must be someone to talk, chat. I engage myself on social media or TV, but I miss my friends. What is opposite of excitement? Ecstasy, dullness and lethargy. I keep postponing my work. In emergency, I have to run to factory. Then I forget these things. My focus shifts. So doctor, describe this word focus. The patient, like when mobile battery is only 10% and when battery is 100%. This difference I feel energy wise. Mostly confidence affects. Sometimes you feel bored, just sit and do nothing. Sometimes you run with energy, enthusiasm. What is bodily sensation? Let's take a rest or leave. No work today. Have a 2 hours afternoon nap. But it happens only for Sunday. My business is like I have to run to factory, industrial areas with spares. He is serving provider means has annual maintenance contracts with companies. Let's have a break. It's too hectic schedule. Take a rest. Then doctor, what is confidence means to you? Patient, I'm not able to tell you exactly. Hand gesture. Let's be in bed and take a rest. If I get good business, I am happy and confident. If business is so, then I feel lethargy. This is totally related to money and business, nothing related to family or emotions. Then doctor, tell me about your concern for money and business. Money hai to honey hai. Today's era is money minded. Now children are growing. I am planning for their higher education. Business also requires money investment. Amdani अठन्नी खर्चा रुपया. This is my condition. I can't evaluate my position.
Same happening about my car. I am into business since 18 years, but still I can't take a call on car. One side says why to get engaged for 5 years EMI. If business doesn't run well, then what will happen? One side says business is doing good and will keep growing. Single family trip in India costs around 1 lakh plus Diwali vacation, festivals, everything cost money. It becomes burdensome. So, doctor, tell me about burdensome. Then patient, like first fulfill family demands, then personal. So, just tell me about word burden. So, patient, no freedom of spending. Like before spending, I have to think how much it will affect my budget. I don't like this. Hand gestures. Then doctor, do this hand gesture again. So patient, like you pull your hands. No free hard spending. You must earn so much money that you can easily do this stuff. So doctor, but how it feels under the burden? Patient, I feel it has. If there should be some support, I have I would have get feeling of achievement. I don't have to say no to their demands. The hand gesture. Doctor, you are doing same kind of hand gesture. Look at this and tell me whatever comes to you. Patient, you pull yourselves. You are not allowing freedom. You are holding it back. If you don't hold back, then everything collapses or budget falls. You can't pull money from business and keep spending. You can only use some amount. So, doctor, how do you feel pulling? Patient, I don't like smiling. Doctor, elaborate on this. You are doing fine. Patient, I don't like. We have some needs. When family demands, I give them. Most of the time, I fulfill their demands. But on some occasions, it's difficult for me. I take some time to do it. You can book car by paying 11,000. Buy back old car. Take maximum loan. New car in your hand, but you have to ask grandfather. Shall I pay more down payment? Shall I wait? In this constraint, I come to conclusion. Let's drive old car only. But when you see good car in society, you also feel you should have one. I don't compare with society, but still I feel our status should be like others. It takes time to reach up to the mark. So, doctor, when you say burden, what is image? Picture comes to you. Close your eyes and experience. Patient, unwanted pressure. Don't like it. Your freedom is restricted. You can't do what you desire, or you can't proceed until things got cleared. So I can't grow as I wish. This is burden. So, doctor, tell me about word grow. Patient, in daily life, I can work as per my wish. Suppose out of emergency, you need to rush to company, then your timetable collapses. You need to address that obstacle. If things are going accordingly your plan, then I'm happy. You can grow when you're well planned. Doctor, forget your problem. Just describe the word grow. Patient, personality, physical, mental, everything is good, then it's growth. When you were before, what you were before 5 years and what you are today is your growth. Ambition, your plan, where you want to see yourselves down the line. Doctor, what dreams do you get? Patient, daily affairs. My thinking comes in my dreams. I purchased car. My expired father comes in my dream. So, doctor, how do you feel when father comes in your dream? Patient, very ecstatic. My next day passes very pleasantly. So, doctor, what are your hobbies? Patient, travel, exploring new places, trying local food. Variety of food, photography. I enjoyed a lot when I am out of routine. So, doctor, so do you don't like your routine? Patient, no. Because of routine, I am able to enjoy. I love watching trains. I go to station, drink a tea, and spend hours at platform watching trains. I love train journey. Like our group is a fanatic for trains. We go to Delhi for Rajdhani Express. We see what is the speed, how it overtakes other trains, how it get preference. We spend whole night like this and come back by same train in the evening. We spend at least 10 weekends like this. I feel ecstatic. I love to post photos on FB, photos of food and trains. I am not trained photographer. I purchased camera and grew like that. Like this, doctor, what is the saddest event in your life? Patient, death of father. I became family head. I started business and run the family. So, doctor, what is food means to you? Patient, I prefer only best tasty food. I prefer hygiene. I avoid eating in canteen in industrial area. But I do go for best food available in that area or city. But I don't eat when I am engaged in work. Food only after work. So doctor, why are you avoiding physician? Patient, he may admit me or put me on insulin.
I don't want to be insulin dependent. From today only, I'm controlling my mouth. I will think twice before putting anything in mouth. I will avoid direct sugar. So, doctor, what is your reaction when you saw HbA1c is 11? Patient shocked. I was expecting it around 6 to 8. When I saw report, I collapsed completely. I feel I am living too dangerously. My father passed away suddenly. If such things happen to me, then everything is finished. What is the bodily experience? What is the bodily experience of shocked patient? It's like you are diabetic. You have to take care of yourself. It's a report of your enjoyment. It's a wake up call. I discussed with myself. I frightened. I repent on my behavior. I never imagined that my system was so damaged internally. His eyes are wet. I overlooked myself. I didn't care about myself. I ignored health issues. You kept eating favorite dishes. I was blaming myself. So, doctor, see this picture and tell me whatever comes to you. Woman 1. Patient. Sad. She is forcefully dancing on someone's instruction. Unhappy. Some sort of pain. Someone is forcing act on her. Doctor, what is the sensation of act being forced on patient? You can't enjoy. Suppose you don't want to go some function, but out of some compulsion you attend it. You are not giving 100% over there, just formality. You feel helpless, no choice. You are bound to do it. So, doctor, see this woman too, patient. Same pain, but both pictures are same for me. Doctor, did you go alone anytime? Patient, no, never. I need someone. I can't go alone. I am talkative. I had once went alone to UP for some reason. My return train was scheduled on next day, but I managed coolly and got train on same day. When I reached home, I cried. I can't live alone. Doctor, do you want to say anything about your life? Patient, yes. But off the record, please stop the recording. I am into platonic relationship. We just broke before 2 weeks. It keeps hammering me. I can't imagine life without her. I am very disturbed due to this. She is my support system and I am her support system. This grief is ruling my life. Her mere word of good morning is booster for me. I can't live without her. Currently, I am stressed plus this reports. End of the case. पेशेंट काफी डिपेंडेंसी की बात कर रहा है, उसके बाद फ्रेंड्स की बात कर रहा है, फैमिलीज की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है और प्रेशर की बर्डन की बात कर रहा है। जो मतलब केस में मेन मेन जो इश्यूज है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मतलब बर्डन की बात आ रही है, प्रेशर की बात आ रही है, फैमिली, फ्रेंड, नीड, सपोर्ट, ये उसको चाहिए कोई ना कोई। तो ये सारी चीजें मतलब मटेरियल होना, पैसा कैसा चले, मतलब घर कैसा चलेगा, फैमिली की नीड पूरी होनी है। मैं अपनी बात में देखता पहले फैमिली की नीड पूरी करता हूँ। तो ये बिलोंग करता है मतलब कमी और ज्यादती जो होती है लाइक। तो ये मिनरल किंगडम की तरफ इशारा करता है सारी चीजों का। और जिस तरह आपने केस में भी लिखा है कि वो बहुत डिसिप्लिन बंदा था, मतलब बीमार होने से पहले, और कोरोना के बाद का उसका डिसिप्लिन टूट गया। तो वो पीएम के हिसाब से देखेंगे तो ये फोर्थ कॉलम भी, फोर्थ रो भी हो सकता है, कैलकेयर लाइन ऑफ डेवलपमेंट। तो और बस इतना तक पहुंचा हूँ अंडरस्टैंडिंग में। मिनरल किंगडम तो लग रही है केस। फादर के डेथ के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और वो ने फादर ड्रीम्स में आते तो एक्सटेटिक, और वो कार के बारे में इतने बार मेंशन किया है। मीन्स ओनली वो हम बोलते हैं ना कि ख्यालों का धनी है, जैसे सोच में परचेसिंग अ कार, ड्रीम्स में भी कार ले रहा है बट जस्ट सोच रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आई हुई है, लेनी नहीं है बट आ गई है, तो अब कैरी ऑन करना है। मीन्स फ्रीडम, बर्डन, ये सब वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं ना। मेरा टी शर्ट आप लोग देख पा रहे हो? जी देखा।
me, my thoughts, my dreams, my goals, my actions. सब Coincidentally, I wear the theme of my patient. पर्पजली पहना होगा सर, आपने कुछ तो वो सीखा। हमको समझ में आया। अरे अरे महारिक सर, आप मेरा सब मजा किरकिरा कर देते हो। मैंने बीसी चालू है, टी शर्ट देखा है, सोचा ये केस के बाद में ये टी शर्ट है 100%। 4 ही टी शर्ट है अभी मेरे मैंने पास। भी वही देखा, मैंने भी वही देखा, जैसे सर बात कर रहे थे तो मैंने भी वही पढ़ा। फर्स्ट आई वाज जैसे नीचे का दिख नहीं रहा था। फिर हाँ, मैंने इसलिए मैं जरा थोड़ा ऊपर ऊपर आ रहा हूँ अभी। कराड़ वालों से बच के रहना चाहिए बस। कुछ भी क्यों, कहो, हम क्या जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री आपने दिए हैं, इसलिए तो फिर बच के रहना ही रहना है। और बड़े साहब के गुरु थे वहां पे। ओके, तो चले सॉल्व कीजिए। हुसैन भाई बोल रहे मिनरल है, आपको क्या लगता है नीलोफर मैम? सर सही में मिनरल मिनरल है क्या? मुझे ना, ये मैं मिनरल तो बोलूं, मैं नहीं जानता सर, लेकिन मेरे को ये हाँ, लगता है ये सिर्फ ख्वाब ख्वाब में जीने वाला बंदा है। ये ख्वाब में ही, ड्रीम में ही कार ले रहा है, और अकेला नहीं रह सकता। ये डिपेंडेंट फेयर है। मेरे को इसमें का मालूम नहीं है ज्यादा कुछ। मुझे भी ऐसे लगा वेरी कि वो गुड। सपनों में, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे लग रहा है मेरे को। तो मुझे मिनरल मतलब स्टिल 5A मेरा जब केस पढ़ो ना, स्टार्ट में ऐसे लगता है कि ये थोड़ा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वो बोलता है कि आई एंजॉय स्पीड ऑफ द ट्रेन, और वो दोस्तों के साथ 10 टाइम्स मतलब वी गो आउटिंग, वो सब देखो तो ऐसे फ्रीडम, मतलब ये दब रहा है, कहीं पे दब रहा है, ये फीलिंग है। बट वो अभी भी आई एम नॉट श्योर अबाउट मिनरल। ओके, एंजॉइंग हिज लाइफ फ्रीडमली, वो जबरदस्ती शी वांट्स प्रेशर टू ले रहे हैं एंजॉय हिज अपने लाइफ। ऊपर, बट ही इज अनएबल टू एंजॉय हिज लाइफ एज पर हिज माइंड। यस यस यस। तो ये जो 5A के जो पूरे के पूरे ब्रैकेट्स है ना, वो हमें दिखाते हैं किंगडम क्या है इस केस का। तो कोई पढ़ो सिर्फ 5A वाले, 2-4 सेंटेंसेस पढ़ लो, सो वी कैन गो टू द किंगडम। सबसे देखो, मनी है तो हनी है, ये फाइव लिया है सर ने। आई फील लिथार्जी यहाँ पर फाइव लिया है। आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट यहाँ पर फाइव लिया है। देन बट आई मिस माई फ्रेंड्स यहाँ पे फाइव लिया है। बाय इवनिंग आई फील नीड फॉर कंपनी फ्रेंड्स फाइव लिया है जी। उसके बाद नीचे में आऊं, आई कांट इवैल्यूएट माई आई पोजीशन थिंक फाइव। one side says business is doing good and will keep growing 5A. Then like first fulfill family demands, then personal 5A. उसके बाद if you don't hold back, then everything collapses or budget falls 5ABC. उसके बाद I don't like we have some needs. Most of the time I fulfill their demands 5A in compensation. बस सर। ओके, इसका मतलब क्या है? जो कोलैप्स है, बिजनेस कोलैप्स हो सकता है, या जो मैंने मेरे रिपोर्ट्स पढ़े, आई टोटली कोलैप्स, मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे नीड है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा बात कर रहा है वो स्ट्रक्चर की है, कि मेरे स्ट्रक्चर में कुछ तो कमी है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। सो देयर इज ऑलवेज अ लैक इन मिनरल रेमेडीज। दे विल टॉक इन डिफरेंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम एंड रोज। बट यहाँ पे तो एक बात क्लियर हो जाती है कि जो केस है वो मिनरल किंगडम का है। देयर इज लैक इन मी, आई नीड समथिंग सो दैट इट कैन बी फुलफिल। सपोज जैसे मैंने कार ले ली तो इट विल बी कंप्लीट, या मेरा बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है तो आई एम फुलफिल्ड और आई एम कंटेंटफुल, या माय स्ट्रक्चर गोज ऑन कंप्लीशन। तो ये सब चीजें जो है ना मिनरल की तरफ है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है किंगडम के बारे में, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द किंगडम? मिनरल किंगडम की केस है ये, या किसी को कोई डाउट है? मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपको समझा कि नहीं समझा।
हाँ या ना अरे कुछ तो बोला कीजिए। बोलो ना यार, समझो तो हाँ बोलो, नहीं समझो तो ना बोलो। सर इतना अच्छे से पूछ रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज कुछ तो बोलो। जस्ट सर समझाओ। सर मिनरल है, मिनरल मिनरल हम्म मिनरल किंगडम है। यस यस यस। नाउ एवरीथिंग अप इज और अप टू 5 और हाँ कैलकरिया बोलिए सर। तो आएगा ही, कैलकरिया तो आएगा ही बाद में, पता नहीं उसके साथ क्या जोड़ देते हो आप। ओके ठीक है, आपके हिसाब से कल के लिए आर्स आने चाहिए फिर। हाँ, आर्सेनिक आपने लिखा कैलकरिया था। फोर्स, कैलकरिया और फोर्स नजदीक लगती है, फिर भी आप जो बोले सर। ओके ओके। तो अभी बाकी इस फाइव पेशेंट, है ना, हाँ फाइव ए भी है तो फॉस्फोरस भी है, कैलकरिया फोर्स। ओके और उसकी फीलिंग कैप्रिकॉन साइन से बहुत जुड़ी हुई है। उसकी बातों से कैप्रिकॉन वाले ऐसे ही बोलते हैं। ओके तो कैप्रिकॉन वाले ऐसे ही बंदे होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लेकिन बीच हार जाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। उस फील्ड से मैंने कल कर ये फर्स्ट बोला। ओके ओके वेरी गुड। सो इस पेशेंट को तो मिनरल किंगडम की दवा देनी है, लेकिन कौन से, अभी कहाँ पे हमको समझेगा कि कौन से रो में से और कौन से कॉलम में से दवा देनी है? तो ये हमें समझेगा 5B से। सो कोई तो 5B पढ़िए। 5B, उसमें आई कांट इवैल्यूएट माय हम्म, पोजीशन, ये भी 5B बताया गया। दिस इज टोटली रिलेटेड टू मनी एंड बिजनेस, यहाँ पर हम्म, भी 5B लिखा है। उसके हम्म, बाद it says business is doing good and will keep growing। बिजनेस के हम्म, बारे में सारी बातें लिखी गई है, पैसे के बारे में बातें लिखी गई है, बजट के बारे में बातें लिखी गई है, वो भी 5B के बारे में है। और एक जगह पे ऐसा लिखा है कि मैं इतना कमाता हूँ और इजीली कैसा मैं बर्बाद कर दूं, ये भी 5B लिखा गया है। बाद में लिखा गया है कि हमको लाइफ में अचीवमेंट मिलती है, वो 5B लिखी गई है उसके लिए। एक जगह पे लिखा है कि अगर आपको, इफ यू डोंट होल्ड बैक देन एवरीथिंग कोलैप्सेस और बजट फॉल्स, 5A 5B 5C। उसके बाद नीचे इट टेक्स टाइम टू रीच अप टू द मार्क 5। सो ऊपर इट भी मीन्स कि पेशेंट ने, हाँ बोलिए बोलिए। ऊपर भी है सर, डलनेस एंड लेथार्जी के पास भी 5B रखा हुआ है। एंड आई कीप पोस्टपोनिंग माय वर्क, डेप्थ और माजम। In emergency, दैट I इज, have to run to factory when I forget these things. My focus shifts. वो वहाँ पर भी 5B लिखा हुआ है। so what he's talking about the what materialistic world, मनी, पैसा, सिक्योरिटी, उसका जो टास्क है, उसका जो डेली का बिजनेस है, उसका परफॉर्मेंस का इशू है, परफॉर्मेंस एंड डिफेंस जिसको बोलते हैं। सो दिस इज द थीम ऑफ रो 4 इन मिनरल किंगडम, which starts from the Kali and ends with Bromia. So do everybody agree? He is talking about the Yes sir. security, dependence, सेफ्टी, कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए मुझे। तो ये जो सपोर्ट है, ये किस लिए चाहिए कि डे टू डे जो काम है, डे टू डे जो लाइफ के जो सपने हैं, उसमें मुझे कुछ करना है। सो दिस कम्स अंडर रो 4। सर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस रो 4? आप लोगों को मैं जो बात करूं समझ में आ रही है या दिक्कत हो रही है या डिफिकल्ट जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है? सर हाँ समझ ये में अच्छी बात। Yes sir, it is very simple. You can continue. ओके, अभी रो 4 है, तो कोई भी मिनरल रेमेडी है तो उसमें या तो एक
ये रहता है कंपाउंड जिसमें कैटायंस और एनायंस रहते हैं, या सिंपल मेटालिक रहता है जैसे फेरमेट है, निकोलम मेट है, इस तरीके से। सो अभी लेट्स डिस्कस अबाउट द थिंग। तो रो 4 में क्या दवा लग रही है आप लोगों को? इसकी डिपेंडेंसी कौन सी हद तक है, कहाँ कहाँ पे डिपेंडेंस है इसका? मला कलकिरिया फ्लोर वाटतो सर. कलकेरिया He's, फ्लोर, ओके, he वेरी has गुड। two things in his life, एक तो खाना और money and support हम्म desire. Father is his हम्म मतलब उसका attachment towards the father बहुत ज्यादा मार्क है ये पूरे केस में, तो मोस्टली कैलकेरिया ग्रुप सेकंड कॉलम में दिख रहा है सर. सेकंड कॉलम की जो थीम है ना, इसमें एक रहता है कि मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर है और लेकिन वो इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, उसमें उतना फर्मनेस, स्टेबिलिटी, ताकत नहीं है। थोड़ी जैसे ताकत आ जाए तो मैं आगे बढ़ सकूंगा, ठीक है। रो 3 में कैसे रहता है कि ताकत तो है लेकिन जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। जैसे अभी महाडिक सर ने वैनेडियम का केस प्रेजेंट किया था कि जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, ये रहता है, हेजिटेशन रहता है, जिसे हम लोग एल्यूमिनियम में भी देखते हैं। तो इस बंदे का स्ट्रक्चर कैसे लग रहा है आपको? वही इन आउट ही रहता है वो। जब वो उसका उसकी मन मुताबिक नहीं होता है तो वो अ, नाखुश हो जाता है, फिर होता है तो खुश हो जाता है। तो इन आउट रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है वो। ओके, इसके तो पास इस कुछ है बंदे ऐसे का नहीं लग रहा है. कि इन आउट से हाँ ज्यादा ये डिसीजन ही नहीं ले पाता है। हाँ, तो ये कहाँ पे आता है? डिसीजन ही नहीं ले पाता। डिसीजन या तो एक है या दो है, डिसीजन ही नहीं ले पाता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो उसके पास ताकत है क्या? नहीं. तो अगर कलकिरिया है तो क्या बोले कि मेरे पास थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, लेकिन इसके पास है ही नहीं कुछ, तो ये कहाँ पे आएगा? फर्स्ट कॉलम में आ गया. कौन सी काली रेमेडी है में, वहां पे? हाँ, काली वेरी काली. गुड, यस यस यस, एवरीबॉडी इज गुड। अभी उसका एक स्टेटमेंट देखिए कि मैं अगर अकेला रहा, he had gone to the यूपी एंड आने के बाद घर पे रोया वो, he needs a group, कलकिरिया needs a house and he, जो काली रहते हैं उनको चाहिए ग्रुप, कंपनी। जो उसने अभी फ्लैट शिफ्ट किया तो इवनिंग में आके उसके पास कोई दोस्त नहीं है, तो बिजी हो जाता है सोशल मीडिया पे, बट एक्चुअली उसकी नीड है कि कोई ग्रुप चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। कानपुर ये गया था यूपी में, वहां पे भी इसको यही प्रॉब्लम आ गई कि वहां पे वो अकेला गया था, कोई ना कोई चाहिए। सो इट कम्स इन कॉलम 1, तो इसलिए काली फिक्स हो गया। अभी काली के लिए कोई प्रॉब्लम है आपको या समझ में नहीं आ रहा? आई विल एक्सप्लेन। यस सर, थोड़ा बताइए ना काली के बारे में। काली ये कॉलम 1 में आती है और इनमें क्या रहता है कि स्ट्रक्चर जो है ना बहुत इनकम्प्लीट, जैसे हम लोग फिटस में है कि फिटस कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, इट हैज टू बी लिव इन होम ओनली, उस तरीके का जो सेंसेशन कॉलम फर्स्ट में रहता है। इनके पास क्या रहता है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है जिसको डोनेट कर दे तो फिर इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है एंड दे फील कंप्लीट। सो इनको कोई तो चाहिए कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले उनसे, एंड सो दैट दे कैन बिकम कंप्लीट। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कॉलम आगे 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 बढ़ते रहता है। कलकिरिया में क्या रहता है कि स्ट्रक्चर है लेकिन स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकता है, या कोई आंधी तूफान आ गया तो घर गिर सकता है। तो ये रहता है कलकिरिया का, इसलिए उनको सिक्योरिटी या कलकिरिया के जितने भी सॉल्ट्स है, जैसे कलकिरिया सल्फोनेरो जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, दे अफोर्ड द सिक्योरिटी स्ट्रेंथ। लेकिन काली में स्ट्रेंथ रहती नहीं, ऑलमोस्ट 0 to 10%। और उसके जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो स्ट्रेंथ आने लगती है, और फेरम में वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद फिर एक एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करना चाहते हैं। यहाँ पे समझा आपको काली क्यों है यहाँ पे? यस सर, यस सर। यस यस। हाँ, अभी
दूसरा अपने को एक पार्ट ढूंढना है, क्योंकि इसमें ये कैलियम मेट नहीं है। कभी कभी लोग कैलियम मेट भी दे देते हैं, बट इट इज नॉट जस्ट कैलियम मेट या कॉस्टिकम। जैसे पैरालाइज बोला तो कॉस्टिकम का भी सोचना चाहिए था, या दिमाग में आपके आना चाहिए कि कॉस्टिकम इज मेड फ्रॉम द काली सॉल्ट। इसमें एक दिक्कत क्या थी कि मैंने जानबूझ के या अननोइंगली मैंने बहुत मीठा खाया है, और जिसकी वजह से मेरी शुगर बढ़ने वाली थी, मुझे मालूम था। दूसरी बात इसने बोली है कि मेरे पास इट्स अ डिफरेंस बिटवीन 10% एंड 100%। सिर्फ 10% ही रह गया है, यानी 90% आपका जो है ना वो आपने लूज कर दिया है, या यू हैव लॉस्ट 90% बैटल, ओनली 10% इज रिमेनिंग। सो व्हाट इज दैट? ये कहाँ पे मिलेगा अपने को? फॉस्फेट। नहीं, फॉस्फेट तो मिडल में आता है सर। 10%, अगर 100 में से 10% ही बचा है आपके पास, हेलोजन तो में आएगा सर फिर ब्रोमीन। यस यस, हेलोजन में क्या रहता है? डेस्परेशन। इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे फ्लोरीन को वी नो द वुमनाइजर थिंग, म्यूराटिकम को चाहिए रिलेशनशिप में, जिसको हम लोग फूड ये बोलते हैं, लव केयर एंड नरिशमेंट। और उसके नीचे आता है ब्रोमियम। और ब्रोमियम की क्या खासियत है? हम लोग मटर उसमें मेडिका में जैसे क्या कि पढ़ते हैं? वो दवा के बारे में बताया ना, ये दवा मुझे डॉक्टर देगा तो खत्म, मतलब बहुत ज्यादा हेवी डोज देगा, या तो फिर वो फिनिशिंग की तरफ बात आती है। उनका फर्स्ट सेंटेंस हाँ, वैसे था, फर्स्ट पैराग्राफ। और उसकी चीफ कंप्लेंट क्यों वापस से आ गई? क्योंकि उसने शुगर या मिल्क शेक या डेजर्ट्स खाए। तो मैंने गलती की है, इसलिए मुझे तकलीफ होनी ही है। बट वो मुझे लग रहा था कि 6 to 8%, यानी 6 to 8 रहेगा HbA1c, लेकिन वो आ गया 11। गिल्ट आ गया उसको। तो वही तो, वो ब्रोमियम में आता है क्या गिल्ट? क्राइम कमिटेड क्राइम, गलती की मैंने। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है ये दिल। और दूसरी बात, आप एक सोचो, ये तो चीफ कंप्लेंट के बारे में हो गया। उसकी लाइफ में देखो, ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप वगैरह, आप अपने फैमिली में सोचो कि अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, तो एज अ हस्बैंड आप कैसे सोचेगा? यार समझो मैं हूं, मैं ये दो तरफा खेल खेल रहा हूं, तो मेरे दिल में क्या रहेगा हमेशा? पनिशमेंट का डर रहेगा। यस, अगर बीवी ने, इसलिए उसने क्या किया कि कैमरा बंद करने को कहा कि आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन द रिकॉर्ड। जैसे हम क्रिमिनल्स जैसे रहते कि सर मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन कोर्ट में मैं इसको बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि पुलिस ने मुझे मारा था, इसलिए मैंने ये मेरी जबानी दे दी, इसलिए मैंने उस टेस्टामेंट दे दिया मेरा। तो ये चीफ कंप्लेंट में भी है, उसकी रियल लाइफ में भी है। So this is how the sensation works or rules your life. You do everything according to your sensation. आपने उसके ये देखे हैंड जेस्चर जो मैंने वीडियोस दिखाए थे आपको, ऐसे 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 कर रहा है वो? Have you seen that? कि वो कैसा कोरिलेट करेंगे इसमें? सर काली ब्रोम क्या है? He wants always occupied. If he is empty या खाली बैठा है ना, his hands, he wants business in his hands. That is what Ian Sholton has written in the Kali Brom. Even Shankan sir has written in the Kali Brom. और जिंकम में इसको हम लोग फिजिटिव बोलते हैं, और जिंकम में फिजिटिव पैर में रहती, लोअर लिम्स में रहती, तो पैर ऐसे 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 हिलाते रहेगा बार 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 बार। लेकिन काली ब्रोम में क्या रहता है? फिजिट इज इन द हैंड्स। ब्रोमियम में भी ऐसे उनके हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, देखो आप कभी भी पेशेंट देखो तो उनके हाथ ऐसे 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 चलते रहते हैं। So their anxiety you see in their hands, and in the zincum we see their anxiety in the legs.
So it is written in the book. I will share some screenshots of Ian Cholton and Shankaran sir. So remedy was calcium bromatum. Now all of you can go and study the rubrics, everything, or read Matra Medica, whatever you have, and you can see how this case coincides with the calibromatum. So what about that nature of his eating? ये खाते जा रहे. Most of the time we think ये of Calcutta in the नहीं, ये आता है कॉलम 4 में, जैसे हुसैन साहब ने बोला था कि इट बिलोंग्स टू द कॉलम 4, यानी जो पर्सनल इवोल्यूशन का मॉडल है उसके हिसाब से देखो तो ये जो केस है ना वो आएगी कॉलम 4 में, और कॉलम 4 में मिनरल्स जहाँ पे आते हैं वहीं पे आपको अगर प्लांट्स की बात करो तो जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि चॉकलेट आएगी, ब्रायोनी आएगी, कोलोसिंथ आएगा। ब्रायोनिया को बिजनेस की वजह से टेंशन आती है, चॉकलेट है, मालवेसी फैमिली आती है, कोला है जिसमें, ये सब रेमेडीज आती है डाइकोटिलेडोन्स में। मोनोकोटिलेडोन्स में बाम्बूसा आता है, सैक्रम ऑफिसिनालिस आता है, अपना गेहूं आता है, ट्रिटिकम वल्गैरिस, चावल आते हैं, बाजरी आती है, ज्वार आती है, और जितने भी हम लोग आज के दिन में फूड कंज्यूम करते हैं दे आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द मोनोकोटिलेडोन्स एंड कॉलम 4। और अगर आप एनिमल में इसको ढूंढने जाओगे तो इट इज लाइक व्हिच कीप्स ऑन ईटिंग एंड ईटिंग एंड ईटिंग। तो जिसमें ये हम लोग लैग ग्रुप में भी जैसे मैमल्स है इसमें भी थोड़ा वो थीम आता है, देख सकते हैं कि टेकिंग केयर ऑफ एंड एवरीथिंग। सो पर्सनल इवोल्यूशन मॉडल की वजह से टोटली कॉलम 4 का केस है, और सेंसेशन के हिसाब से कालीब्रोमेटम की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। ये कॉम्पेंसेशन इस केस में इसलिए है कि इनको लगता है कि मुझे फंसाया गया है, एक्चुअली ये खुद फंसा रहा है। ही इज डिसीविंग हिज वाइफ, ही इज डिसीविंग हिज फैमिली, लेकिन वो जो गिल्ट है वो इतना छुपा के रखा है उसने, या इतना छुपा हुआ है कि ही इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दैट। इसलिए वो मैंने लिखा था कि दिस इज अ कॉम्पेंसेटेड केस। कॉम्पेंसेटेड केस में रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ती है, या जो पेशेंट कभी कभी बोलता है उसका उल्टा मतलब निकाल के आपको लेना पड़ता है। जैसे अगर पेशेंट ने बोला कि मैं डिसिप्लिन हूँ, इसका मतलब ही इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहता तो आज के डेट में आप देखो लॉकडाउन में कितने सारे लोगों ने वेट कम कर दिया, नई नई रेसिपीज देखी, ये वो कुछ ना कुछ सीखते रहे, टाइम इन्वेस्ट किया, बट ये बंदा खाते रहा, जो कि प्रॉपरली उसने 20 kg वेट लूज किया था। इट्स नॉट अ जोक टू लूज 20 kg। तो एक हेलो कभी सर, पेशेंट मतलब जो बोलते हैं उसके उल्टा लेना चाहिए ऐसे केसेस में। हाँ, कॉम्पनसेशन में वैसे रहता है। But sir, still I want to ask one thing. कि whenever you are confused between Kali or Calcarea, at that time what questions you ask at that time, just to confirm? जस्ट टू कंफर्म क्या है कि काली में आएगा कि आई नीड ग्रुप, आई नीड पीपल, आई नीड समाज, आई नीड कंपनी। और कलकेरिया में क्या आएगा कि आई नीड मेरा घर वाले मेरे साथ है ना, दैट इज सफिशिएंट। मेरा एक या दो दोस्त वो चाहिए, एक अच्छी से सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा जो स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है उसको सिक्योरिटी मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले। इनको स्ट्रेंथ चाहिए रहती है कलकेरिया को, और काली में स्ट्रक्चर इतना वीक रहता है कि पहले स्ट्रक्चर कुछ तो बनने दो, फिर मैं आगे जाऊंगा, या फिर मैं आगे जाने की सोच सकता हूँ। कलकेरिया ग्रुप यानी घर वालों पे डिपेंड ज्यादा रहते हैं, उनके इश्यूज घर वालों से ज्यादा रहते हैं, और काली के जो इश्यूज है वो सोशल इश्यूज ज्यादा रहते हैं, समाज के इश्यू रहते हैं, सोसाइटी के, कंपनी, ग्रुप, मास, ये रहते हैं। बोले ना उसको दोस्त चाहिए, वो अकेला यूपी से आया और रोया, तो मुझे थोड़ा वो काली फॉस लगा था, क्योंकि फॉस में रहते हैं ना दोस्तों का ज्यादातर, इसीलिए मैं फॉस पे आया था। मैंने भी सर गिल्ट 2-3 बार महसूस किया था कि वहाँ पे आपके केस में गिल्ट है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। नहीं, ये क्यों है? क्योंकि उसने डायरेक्टली वर्ड यूजेबल नहीं किया गिल्ट, इसलिए कॉम्पेंसेटेड केस है। अगर वो एक्टिव सेंसेशन पे रहता ना तो उसको खुद बोल देता सर मुझे गिल्ट है, मैं उसके साथ भी मेंटली एंगेज हूँ,
और घर पे भी रहता हूँ मैं, घर की लेकिन पूरी ड्यूटी करता हूँ और उसको भी मैं खुश रखता हूँ, तो ये आया नहीं है क्योंकि ये कॉम्पनसेटेड था, इसलिए उसने उसके मन को खुद को एहसास नहीं कि उसको गिल्ट है, इसलिए he had not used that word guilt. Otherwise, totally in a bromatum you can see the guilt running through and through the case कि मैंने शक्कर खाई, मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा रिलेशन टूट गया, and accidentally or fortunately his wife and his girlfriend both are my patients, so I know every individual regarding involved in this case. तो खाली पर्सनली जो बंदा होता है ना, वो भी ग्रुप बहुत बनाता है। वो खाली का बोलते उस हैं थीम ही है, खाली का थीम ही ग्रुप है। हाँ, नहीं वो भी है। फॉस्फोरस वाला तो ऐसे भी वो जल्दी फ्रेंड सर्कल बना लेता है, तो खाली फॉस्फोरस का सर्कल बना होता है। लेकिन आपने वो बीच में बोला था, तो वो अकेला रहना भी चाहता है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन भी है, इसलिए फोर्स के बजाय ब्रोम अच्छा है, बरोबर है। So one last question, because I'm गौतम asking 10 गौतम question. सर, हेलो गौतम सर, हाँ जी सर, तुषार जी सर का भी एक क्वेश्चन है। तुषार सर, हाँ बोलिए। हॅलो, मुझे हा मुझे सर, मला मला काली नाही कळलं सर याच्यात, हो काली. काली मध्ये काय आहे की टोटली डिपेंडन्स अपॉन द ग्रुप, टोटली डिपेंडन्स अपॉन द कंपनी, टोटली डिपेंडन्स अपॉन द सोसायटी, that is group, that is why it is kali. Otherwise we can prescribe him bromium, and if it is just only kali we can even prescribe kalium metallicum also. So can I और उसका जो लैक था, काली कैसे आ गया कि उसने जो पूरी बात की है वो बात की है पैसे की, बिजनेस की, टास्क, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसकी वजह से रो 4 कंफर्म होता है। और रो 4 में वो कहाँ पे है, तो कॉलम 1 में स्ट्रक्चर जस्ट बनना चालू होता है, जैसे फीटस, जैसे कि हम लोग बोलते प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेग्नेंट है, बट वो जो फीटस है इट इज 110% डिपेंडेंट अपॉन द मदर। तो उस तरीके का थीम रहता है कॉलम 1 में कि मैं ग्रुप की सिवा रह नहीं सकता। सिर्फ फैमिली में वो खुश नहीं है। अगर समझो आपका काम 6 बजे खत्म होता है, आप घर पे आते हो, आपके 2-3 बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनके साथ आप खुश नहीं रह सकते, मुझे ग्रुप चाहिए। आई मिस माई फ्रेंड्स, आई मिस माई ग्रुप। वो जो ग्रुप है दैट कम्स अंडर काली, इसलिए काली आ गया। हेलो शशिकांत हाँ सर, मैं कुछ बोलूं? हाँ बोला हॅलो, हा बोला बोला। थँक्यू बोलतो. पण ऍक्च्युली मी मराठीमध्येच बोलतो, हटकून मराठीमध्ये बोलतो का नाही नाही, शशिकांत बाकीचे सर प्लीज. मेंबर्सला कळत नाही, नाही नाही, मी बाकी पर्सनली लोग बोलतो, नंतर मेंबर्स। हिंदीमध्ये पण बोलतो, हाँ है ना. हिंदी मध्ये बोला, हिंदी मध्ये बोला। मेरे मेरे मन में एक सोच है कि आप जब भी केस प्रेजेंट करते हो ग्रुप में, प्लीज हिंदी में प्रेजेंट कीजिए प्लीज, क्योंकि ऑल इंडिया हिंदी सबको समझ आता है ना. तो वो जो फील होता है ना रेमेडी का, जो हम अंदर फील करते हैं, हमारी तो मराठी भाषा है ना, आपके पेशेंट भी मराठी में बोलते हैं, तो हम भी मराठी में समझते हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसफर करके रूब्रिक्स पे जाते हैं। तो ये बातें इतनी इतनी प्रोसेस से लेके जाके फिर प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले ही हम उसको कैच कीजिए कि करना चाहिए ना। इसके लिए आपका जो इतना बढ़िया नॉलेज है ना, तो हम सभी को इसे, हमारी मातृभाषा होती है ना, जैसे कि हिंदी, ऑल इंडिया हिंदी होती है ना, तो मैं चाहता हूँ इतना बढ़िया सा नॉलेज सभी को समझ में आना चाहिए। प्लीज हाँ शशिकांत सर, एक रिक्वेस्ट पुणे ह्या नात्याने मी बोलतोय तुमच्याशी. हा नहीं नहीं, हिंदी नो हिंदी ट्रांसलेशन का काम राहुल सर के पास भेज दो. हा माडिक सर, नक्की नक्की करणार, का नाही करणार, तुम्ही बोलले ना, मी नक्की करणार. सर एक क्वेश्चन आहे माझा. बोला। किंगडम अंडरस्टँडिंग कोणत्या लेवलला करायचं सर? 5A व्हॉट लेवल?
फाईव्ह अच्छा फाईव्ह 5 लेवलला किंगडम, फाईव्ह वेला सब किंगडम असतं, 5 ला प्रॉपर सबस्टन्सेस असतात किंवा सोर्स असतो. यस. हेलो सर. यस, सर मैंने काली ब्रोम ही बोला है. पर हाँ वो मैंने बोला था वाली ना जो कि मैंने बोला था ग्रुप में रेमेडीज इन द ग्रुप. ओके सर, वो लास्ट थिंग. सर मैं एक्चुअली उसका 2-3 चीज ये पकड़ी हूँ कि उसका जो हेल्पलेसनेस है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग लग्जरियस और डेल्यूजन वेल्थ में होकर वो अपने हाथ को रोक कर ये नहीं कर पा रहा है. सिर्फ उसके थॉट्स में वो सब है, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी में वो सब है. और मैंने वो समझा था सर, जो आपने गिल्ट वाला फैक्टर बोला ना, वो गिल्ट वाला फैक्टर नहीं मुझे ये आया था. मुझे ब्रोम उस हिसाब से लगा था सर. एक सैडनेस इम्पोर्टेंस विद बोलते हैं, एक डिल्यूजन मनी स्वीड अप इन क्लोथिंग इज, और क्लोथ्स. हेल्पलेसनेस. ये चीज मैंने उसकी पकड़ी थी कि उसके ऊपर तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक ही इज द हेड, तो ही शुड बी मोर फ्री टू एंजॉय. पर उसको वैसा नहीं हो रहा है. ही इज मेकिंग प्रोविजन, मतलब ये सोच रहा है, रोक ले रहा है अपने आप को. जैसे उसने बोला कि एकदम डायबिटीज की रिपोर्ट्स आई तो आई केम टू नो कि एकदम मैंने अपनी लाइफस्टाइल को इतना ये कर दिया है कि सो मच डैमेज टू माय बॉडी. यानी वो सब चीज पर से मैंने सर काली ब्रोम पकड़ा. वेरी गुड. मैंने पढ़ा आपका अंडरस्टैंडिंग, वो काफी अच्छा है. थैंक यू सो सर. कोई भी रेमेडी कैसे रहती है कि हाथी की तरह रहती है. मैं पूंछ देखता हूँ, कोई सूंड देखेगा, कोई पैर देखेगा, कोई कान देखेगा, कोई दांत देखेगा. बस हमको हाथी अगर पकड़ में आया दैट इज इनफ. और जैसे आप रेपटरी से पकड़ना चाहोगे तो रेपटरी से भी आएगा. ऐसा कुछ नहीं कि रेपटरी से नहीं आया था. या मटर मेडिका से पढ़ो, या जो लेटेस्ट इयान शॉल्टन सर या शंकरन सर ने जो किताबें लिखी उसमें से पढ़ो. इट शुड कम. चाहे आप कौन से रास्ते से जाओ, सिमिलम तक पहुंचना जरूरी है.